Now moving forward, today we are here to celebrate not just the academic achievement of our students, but also their talent, their creativity, their hard work in various fields. So first of all, I would like to invite our honorable chief guest, Shri Subhash Ji Chaudhary, CEO, Jila Parishad Shri Ganganagar. Please come on stage and award our brilliant students for their outstanding achievements in various fields. I congratulate all the winners. So with the series, I would like to call the students who will receive the award of excellence as well as the brilliant student of our school. Vipul Yadav, son of Ravi Yadav. इन्होंने डीएवी स्कूल से 12 पास आउट करके नीट में एडमिशन लिया और आज एम्स जोधपुर में अपनी स्टडी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा दिनेश कुमार, श्री चेतन राम। दिनेश कुमार, श्री चेतन राम जो अभी नीट क्लियर करके छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। नेक्स्ट इज आदित्य शर्मा, सन ऑफ हरि सिंह शर्मा। आदित्य शर्मा, सन ऑफ हरि सिंह शर्मा, प्लीज कम ऑन स्टेज, जो अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। ये तीनों ही ब्रिलियंट स्टूडेंट डीएवी स्कूल से पास आउट होकर आज नीट में सिलेक्टेड हुए हैं। दिनेश कुमार, सन ऑफ चेतन राम, आदित्य शर्मा, सन ऑफ हरि सिंह शर्मा। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में प्रतिभा हासिल करी। इसके बाद मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे स्कूल के एकेडमिक अवार्ड्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 12 आर्ट्स में आरजू 96.4% लेकर क्लास 12 में टॉप किया है। उनके फादर हमारे बीच प्रेजेंट है, उन्हें बुलाना चाहूंगा मंच पर। Second position, Sharu Rani, 96.2% in class 12. Please come on stage and receive your awards. Next, class 12 commerce से Komal Garg, 91.2%. Second position, Suhana, 90.60%. Class 12 agriculture, Bhavana, 93.8%. Second position, Arman, 88.8%. Class 12 medical, Chiranjeev 91.60% and Samar Sidana 91.20%. Class 12 non-medical, Jasmine Kaur 93% and second position Priyanka 93%. Class 11 Twinkle Ramratan 95%. क्लास 11 में सेकंड परीक्षित रतनलाल 93.7%. I would also like to call their parents with the student. Class 11 Commerce Pihu 92%. Second position Bhavishya 88%. Guys, please come forward to the stage and receive your award with your parents. Class Prize 11 winners, please make your way to the stage. Class 11th Agriculture, Sukhmanjeet Kaur, 94%. Second position, Dhananjay Singh, 88%. Please have a huge round of applause for our brilliant students. तालियों का क्रम नहीं टूटना चाहिए ताकि इन बच्चों का हौसला बढ़ता रहे।
Class 11 medical, Prerna 93%. And second position, Diksha 87%. Class 11 non-medical, Arshpinder Kaur 95%. And Mol Soni 94%. Class 10, Harmeet Kaur 92.5%. Second position, Pratham 92%. आर्य समाज की इस पावन धरा पर शिक्षा के क्षेत्र में वर्चस्वता हासिल करने वाले होनहार छात्रों का सम्मान करते हुए यह अतीव पुनीत और शुभ मंगल वेला है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देकर न केवल अपना निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र का भी निर्माण कर रहे हैं। Class 9, Manish Garg 95%. Second position, Gautam Chawla 95.9%. Class 7, Lishu Chaudhary 97%. Paramveer Singh 95%. Class 6, Harshpreet Singh 99%. And Mohan Singh 98.25%. We would be delighted if our prize winners could join with their parents on the stage. Guys, please come forward to the stage and receive your award. इसी के साथ क्लास 8 में A+ ग्रेड पाने वाले हमारे टॉप स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड में A+ लिया, दैट इज आशीष, ऋषभ, साक्षी, हर्षिता एंड करिश्मा. प्लीज कम फॉरवर्ड टू द स्टेज. Give a big round of applause for our school toppers. These students have made their excellence in their education. इसी के साथ I would like to call the best scout student award goes to Bhupender, son of Narayan Ram, class 12 Thai. Best Scout award. Please come on stage and receive your award. Best NSS award goes to Karthik, class 12 Thai. And best NCC award goes to Arman, class 12 Thirds. Give a big round of applause for all these best students of different various fields. Best Scout Bhupender, Best NSS Karthik, and Best NCC award Arman 12th I. Congratulations to all the winners of various fields. I would like to thank our chief guest. Thank you, sir. We are honored to have you with us today. Sir, I would like to request Shri Subhashji Chaudhary, CEO Jila Parishad Shri Ganganagar,
Sir, please share your some valuable words and inspire our students, motivate them. Thank you, sir. Give a big hand for Shri Subhash Chaudhary. आज के इस विशाल कार्यक्रम में पधारे संतोष जी सहारण हमारे आदरणीय सम्मानित मोहित कासनिया सर, अजय सर, मंच पर विराजमान सम्मानित आदरणीय गुरुजन, पधारे हुए सभी अभिभावक और बच्चे, आज मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है इतने बड़े कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया गया एज ए चीफ गेस्ट। मैं अपनी बात यही से शुरू करूंगा कि मैं भी एक ऐसी संस्था से निकला हुआ स्टूडेंट हूं और मैं भी आपकी तरह इसी तरह के फंक्शन में कहीं बैठा हुआ था और जिस तरह आज बच्चे सम्मानित हो रहे हैं उसी तरह मेरा भी थोड़ा रिकॉर्ड ठीक था तो मुझे भी सम्मानित किया गया था। और वहाँ के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब थे, तो मुझे सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा था कि आप भी इतनी मेहनत करो कि प्राइज लेने वालों की जगह प्राइज देने वाला बनो। तो ये बात मेरे मन में कहीं न कहीं घर कर गई और आपके भी मन में ये बात होनी चाहिए कि आप भी इतनी मेहनत करो कि पुरस्कार लेने की बजाय देने वाले बनो। ये मेरी आप सभी से गुजारिश भी है और सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं भी है। आज के कार्यक्रम में समय की गरिमा है, मैं अपने विचार रखना चाहूँगा युवाओं के लिए। आज युवा और उनके माता पिता अभिभावक आए हैं और सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा कामयाब हो, उसका नाम हो, उसको लोग जाने और समाज में एक वो शख्सियत बने। चाहे आप स्पोर्ट्स हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे जीवन की जितनी परिस्थितियां हो, जब भी आपको जीवन की परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, जब भी आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आपका बहुत काम आएगा, आपके जीवन को सुधारेगा। अगला मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी से आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए प्रयास करने चाहिए। हमारे 2 युवा अधिकारी हमारे साथ हैं, इनकी पर्सनैलिटी को देखने से ही आपको ये आभास हो जाता है कि इन्होंने अपना इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी किस कदर डेवलप की होगी। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अभी से प्रयास करने होंगे। छोटी छोटी बातों का अभी से ध्यान देना होगा, चाहे आपका टर्नआउट है, चाहे आपका विषयों पर गंभीरता से चर्चा है, चाहे आपका नॉलेज है, चाहे आपका समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने परिवार के प्रति विजन है, आपका दृष्टिकोण है, सभी चीज़ों को शामिल करते हुए अभी से आपको कोशिश करनी है कि आप एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करें। और आप एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे तभी आपकी जीवन की सारी चीज़ें सरल हो जाएगी और आप कामयाब होंगे। आज के समय में हमने देखा है कि मोबाइल का जमाना है और सभी युवा बच्चे, मेरा ये मानना है कि मोबाइल का सदुपयोग होने के बाद दुरुपयोग होता है। हमने बहुत से कैंप किए हैं, बहुत से प्रोग्राम किए हैं। जब मैं किसी बच्चे से सरकार की किसी योजना के बारे में पूछता हूँ
कि आप मुझे सरकार की 3 योजनाओं के बारे में बता दीजिए, सरकार के उस पोर्टल के उस ऐप के बारे में बता दीजिए कि जिसको खोल के हम सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी का कोई जवाब नहीं होता। यहाँ मेरा ये कहने का अभिप्राय ये है कि आप मोबाइल में जितना समय दुरुपयोग करते हैं उसका सदुपयोग करना शुरू करें। ये आपके लिए अपने आप में एक पूर्ण गजट है जिसमें आपको सब चीजें मिल सकती है। आपकी स्टडी की चीजें मिल सकती है, आपको जो भी जानकारी चाहिए यहाँ से मिल सकती है। तो मेरा यही अनुरोध है कि इसका सदुपयोग कीजिए, इसका अपने स्टडी में काम में लीजिए, अपने करियर में काम में लीजिए। इसका दुरुपयोग कम से कम होने देंगे, वही आपकी सफलता की ओर आपको लेके जाएगा। जीवन में आपकी हॉबीज होना बहुत जरूरी है। आज के इस फटाफट जीवन में हम अभी चर्चा कर रहे थे कि अगर आपकी जो भी हॉबीज है, किसी का म्यूजिक हो सकता है, जैसे मेरा वॉकिंग है, किसी का ट्रेकिंग हो सकता है, किसी का स्पोर्ट्स हो सकता है, तो आप अपनी हॉबीज को जरूर डेवलप करें। क्योंकि जब आप मेंटली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर चुके होते हैं, अब वो भी एक एग्जाम्पल की बात है, जितने कोचिंग सेंटर है, चाहे कोटा के हैं, चाहे जयपुर के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, वहाँ की परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं वो मानसिक रूप से इतने थक चुके होते हैं कि उनको दिमाग को आराम देने के लिए अपनी किसी हॉबी की जरूरत पड़ती है। अगर उस समय अगर आपकी हॉबी नहीं है तो आपका दिमाग उन चीज़ों को पढ़ के इतना भर चुका होता है कि आप थक चुके होते हैं। तो उस थकावट को दूर करने के लिए आपको फिर से मेंटली प्रिपेयर होने के लिए एक ऐसी हॉबी जरूर रखनी होगी जिसपे आपको हमेशा उसको जिंदा रखना है। आपको खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को फ्रेश रखने के लिए, आपके मनोबल को ऊंचा रखने के लिए उस हॉबी को जरूर डेवलप करें और उस पर जरूर आप रेगुलर काम करते रहें। आपकी स्टडी के लिए कहें, स्टडी के लिए भी आज का समय में हमने देखा है कि 1 डे सीरीज आपका, फिर आपका उससे आगे वो 7 डेज, 1 वीक जो भी है उसको पढ़ के ज़्यादातर एग्जाम देते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जिन भी अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करोगे, अच्छे लेवल पर जाना चाहते हो तो आपको विषयों की गंभीरता को समझना पड़ेगा। उसके लिए आपके सामने जिस भी विषय पर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको बड़े लेवल पर जाकर आपको पढ़ना होगा। आपको इसके लिए सीरियसनेस लानी होगी, कंसंट्रेशन लाना होगा। जब तक आप में सीरियसनेस, कंसंट्रेशन नहीं होगा उस विषय के बारे में तो आप उन चीज़ों को नहीं पकड़ सकते जिनको आप पकड़ना चाहते हैं, जो आपके करियर के लिए जरूरी है। एक और मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चों में वो रोग हैं जो हम सोच नहीं सकते, ऐसी बीमारियां हैं जो अभी हमारे युवाओं में भी आने लग गई है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप फिजिकली फिट जरूर रहें। जब आप फिजिकली फिट रहेंगे तभी सारी चीज़ें ठीक रहेगी और आप अपने कैरियर पर ध्यान दे पाएंगे। और आज के समय के हिसाब से एक अंतिम अनुरोध मैं आपसे करना चाहूँगा कि अपने जिले का खास तौर पर, मैंने कई जिलों में काम किया है, अपने जिले में खास तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या युवाओं को पकड़ लिया है, वो है नशा। नशा किसी भी रूप में भी हो सकता है, मेडिकेटेड नशा हो सकता है या दूसरा नशा हो सकता है। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप इस से हमेशा दूर रहे। अगर आपको बचना है, अपना कैरियर बनाना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, अपने परिवार की मदद करनी है, अपने समाज के लिए कुछ करना है तो इससे हमेशा दूर रहे। अगर एक बार इसके अंदर चले गए तो फिर कभी निकल नहीं पाओगे, ये हमने देखा है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। We are confident that your words of wisdom and inspiration will motivate and encourage our students to strive their excellence. We are deeply grateful to our esteemed chief guests for taking their time to address our students and share their valuable insights. Thank you very much, sir. Now I would like to request Honorable President Sir Chaudhary Santosh Kumar Ji Sir, Principal Sir and Shri Ramlal Sir to present a token of appreciation as a memento to Subhash Chaudhary Ji.
who got 92% in 10th board examination. हर वर्ष पाऊजा जी की तरफ से 10वीं में टॉप करने वाले छात्र जो डीएवी में अध्ययनरत हैं, उनको यह अवार्ड 11,000 रुपए का नगद प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां छात्रा हरमीत कौर के लिए और साथ ही साथ सुदेश पाऊजा जी के लिए। ये अवार्ड हमेशा जारी रहेगा। अगले वर्ष भी जो छात्र 10वीं में टॉप करे और डीएवी में अध्ययनरत रहे अगली फर्दर कक्षाओं में, तो उसे भी अवार्ड मिलेगा। तो इसी हौसले के साथ